Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asand. Students, today we are going to start our new chapter, and the chapter name is Ratio and Proportion. Students, we are on book page number 204, and students, chapter name is Ratio and Proportion. Students, this chapter includes two parts. First is ratio and second is proportion. So firstly, we will discuss ratio portion. So students, this is introduction video, and in this video we will learn the concept and the topics about ratio to solve the exercise. So students, let's come and understand with the help of video very carefully about ratio. Students, firstly, we will discuss the definition about ratio. What is ratio? Ratio means when we relate the two things, or you can say that simply when we compare the two quantities, then ratio will become, then ratio will exist. Means जब आप दो सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो तो स्टूडेंट्स वहां क्या एग्जिस्ट करता है? रेशियो एग्जिस्ट करता है. सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल to explain the ratio. So let's come. Suppose students, I am taking example of students. Suppose in your class, number of boys is equals to 20 and girls are 25. These are the students, number of students in your class. Number of boys is equals to 20 and number of girls is equals to 25. And we want to find ratio of number of boys to number of girls. और हमें रेशो फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज का किसके साथ? नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ. स्टूडेंट्स, हेयर टू क्वांटिटीज. सो फर्स्टली रेशो को कैसे राइट करना है? नंबर ऑफ बॉयज 20 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 25. वी आर कंपेयरिंग दीज टू क्वांटिटीज एंड वी वांट टू चेक अबाउट रेशो. सो दिस इज द रेशो. दिस symbol explains ratio. Now students, 20:25. Firstly, I am telling you what is 20 and what is 25. Students, 20 को बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, और इसका सेकेंड नेम क्या होता है? एंटीसीडेंट. एंड जो 25 है इसे हम बोलेंगे सेकेंड टर्म, और इसका सेकेंड नेम क्या है? कॉन्सिक्वेंट. सो स्टूडेंट्स, when you will find ratio, first term name is antecedent and second term name is consequent, and this symbol name is ratio. Now students, we are finding ratio between the number of boys to the number of girls, but it is necessary that if number of boys comes first, you will write the number of boys first. If you will write number of girls first, then ratio will change. So students, जिस टर्म के बारे में पहले बोला जाए, जिस भी चीज के बारे में पहले बोला जाए, आप उसको पहले ही राइट करोगे. अदरवाइज एक्सचेंज करने से, आगे पीछे लिखने से रेशो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, रेशो को सॉल्व कैसे करते हैं? टू क्वांटिटीज को हम कंपेयर करें. क्वांटिटीज को कंपेयर करने का हमारा तरीका है, हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में
या आप बोल सकते हो डिवीजन फॉर्म में राइट करेंगे। 20:25 को कैसे सॉल्व करेंगे हम? 20/25। नाउ वी विल change this fraction or this division by simplest form. You knows that 20 comes on the table 5 के टेबल पर 20 कब आता है? 4 पर। And on the same table, it is most important point, numerator and denominator both will cut on the same table. So 5 के टेबल पर 20 कब आता है? 4 पर। एंड 5 के ही टेबल पर 25 कब आता है? 5 पर। सो आर आंसर इज 4/5। सो स्टूडेंट्स, जब इन टू क्वांटिटीज को हमने सॉल्व किया 4/5 इज कमिंग। सो आर आंसर इज 4:5। नाउ स्टूडेंट्स, we will discuss the definition with the help of this example. क्या डेफिनेशन एग्जिस्ट हुई कि हमने दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया बाय डिवीजन, तो हमें क्या गेट हो गया? रेशो। और रेशो का सिंबल क्या है? ये 2 डॉट्स। नाउ यू कैन से दैट जरूरी नहीं 4:5, मैं एनी 2 नंबर्स की, एनी 2 क्वांटिटीज की बात कर रही हूं। दस मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूंगी, इफ P एंड Q आर द 2 नंबर्स, अगर कोई नंबर्स आपके पास P और Q हैं तो उनका रेशो कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? P/Q। हमने यहाँ 2 नंबर्स लिए 20 और 25, कैसे एक्सप्लेन किया रेशो? 20/25 इज कॉल्ड द रेशो एंड इज डिनोटेड एज, और रेशो को डिनोट कैसे करते हैं? P/Q, where P will come first term and Q will come second term, and this sign is called ratio. Now in short students, आप ये बोल सकते हो रेशो क्या होता है? रेशो is simply a fraction, and a ratio doesn't change if both the terms are multiplied or divided by any number. Students, this is fraction na, or you can say that ratio is a division, 2 quantities by division. So जब आप फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो टर्म, वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होती। दैट्स वाई अगर आप रेशो में भी किसी भी नंबर से, टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो रेशो चेंज नहीं होगा। एंड स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ 20 और 25 को कंपेयर किया, हमने रेशो फाइंड किया, एवरी टाइम यू विल चेंज इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो में अ रेशो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो ऑलवेज एक्सप्रेस होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम इसको डायरेक्टली 20:25 नहीं राइट कर सकते, ये सॉल्व हो रहा था, सिंपल फॉर्म में आ रहा था, 5 से डिविजिबल हैं बोथ नंबर्स, दैट्स व्हाई आवर रेशो इज 4:5। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन वी चेंज द टर्म्स। सपोज अगर मैं 25 को ऊपर ले लेती और 20 को नीचे ले लेती तो क्या रेशो आ जाता? 5/4। तो वहां रेशो क्या एग्जिस्ट करता? 5:4। सो स्टूडेंट्स, यहां क्या हो रहा है? हमारा रेशो चेंज हो रहा है। यहां रेशो आ रहा था 4:5 और यहां चेंज हो गया रेशो 5:4। सो स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी टर्म के बारे में आपको रेशो फाइंड करना है, जो टर्म पहले बोली गई है आप उसको पहले ही राइट करोगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशो। When we compare 2 similar quantities by division, we get a ratio of the 2 quantities. A symbol 2 dots is used to express a ratio. And a ratio is simply a fraction and has no unit. Now students, come in my next video for the next topic. Thanks and have a nice day.